Good morning, friends and educators, communities, society leader of the communities, society and government officials. Thank you to GATI, Global Institute of Training and Education for the Disruptive Education. Global Education and Training Institute of Lucknow, Mrs. Sunita Gandhi, who allowed me to express my thoughts about the post-COVID global scenario, educational scenario. So, education in a post-COVID world, 9 ideas for the public action, International Commission on the Future of the Education. All of you know very well about that. There is a dramatic change in the throughout the life, each sector of the life, but the most drastic damage in the field of the education. ओके सो मैं आपको ले चल रहा हूँ कि क्या हुआ है एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन most relevant, that there is a damage in the school education. What happened? Last 18 months is very tremendous, very painful to us and for the children too. Okay, because they were away from their learning, they away from their spaces, they away from the schools. So what is going on? So that is titled as the post-COVID global education scenario, the role of educator, society and government. क्या रोल होना चाहिए ग्लोबल एजुकेशन सिनेरियो में आफ्टर पोस्ट कोविड के बाद. Education is human's top priority because it is basic human right and the foundation on which to build peace and drive sustainable development. देखिए, फर्स्ट तो ये है पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी में. अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है हेल्थ है, और उसके बाद जो आता है वो है आपका एजुकेशन होना चाहिए. पर क्या हमने एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखा है? चाहे वो एजुकेटर्स हों, चाहे सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी ने इसको बड़े नीचे बॉटम में ले गए हैं वो एजुकेशन को. ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज द specialized agency for the disruptive education, and this education sector provides global and regional leadership in education, strengthens the national education system and responds to the contemporary global challenges through the education with a special focus on the gender equality in India. देखिए, जो गेती है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है ये 18 मंथ में डिस्ट्रप्टिव एजुकेशन में ट्रेन करने में लोगों को, और कुछ जो मुद्दे हैं, जो मैटर्स हैं, उनको कॉन्टेम्प्रेरी मैटर्स को उठाने में बहुत ज़्यादा मदद की है. और उन्होंने लीडरशिप इन एजुकेशन, स्ट्रेथन्स द नेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस. ग्लोबल चैलेंजेस है, नॉट वी आर नॉट इंडिविजुअल, हम कुछ भी नहीं कर सकते इंडिविजुअल, दैट इज द प्रॉब्लम. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्लोबल लेवल, एंड देयर इज द वन मोर वर्ड ऑफ द सस्टेनेबल. वी हैव टू सस्टेन फॉर द लाइफ, वी हैव टू सस्टेन, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट विच कीप द हार्मोनी विद द नेचर, देन वी कैन सर्वाइव. एंड दिस post COVID or any kind of the scenario. Future of education. Learning to become the International Commission to the Futures of Education was established by the UNESCO in 2019 to reimagine how knowledge and learning can shape the future of the humanity and the planet. What is
क्या कह रहा है यूनेस्को ने क्या कहा है, जो फ्यूचर एजुकेशन होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी बेस्ड होना चाहिए, है ना। और हम हो गए हैं प्रोफेशनल और कमर्शियल बेस्ड। प्रोफेशन और कमर्शियल वे रॉन्ग नहीं है, बट जो वे है हमारा प्रोफेशनल्स को गेन करने का या कमर्शियल होने का, उसमें हम एथिक्स को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, साइड बाय साइड कर देते हैं। द इनिशिएटिव इनकॉर्पोरेट्स extensive public and expert engagement and aims to catalyze the global debate on how education needs to be rethought in a world of the increasing complexity, uncertainty and fragility। एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रख के हम ये जो इस तरीके के सिचुएशंस पैदा होती है जैसे कोविड, नोबडी थिंक अबाउट थॉट बिफोर द कोविड इट विल हैपन। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी है एजुकेशन में, हमारे पास जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स अभी उतने बेहतर नहीं हैं और हम उतने ट्रेन नहीं हैं। अनसर्टेनिटी है और फ्रेजिलिटी है। देखिए, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट मैटर। दैट मीन्स नाइदर द टीचर knows to how to teach and what to teach. The parents never knows what should be taught, what should not be taught, and how, why should be taught. And the government doesn't know anything, only that is on the paper. ये फैसिलिटी है। देखिए, सीधा सा ये है कि शिक्षक को, जो शिक्षाविद है, उसको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। एमलेस है हमारी एजुकेशन। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी नहीं पता है कि हम क्यों स्कूल भेजते हैं, क्यों, वाई और क्या होना चाहिए बच्चों के साथ। और गवर्नमेंट को तो बहुत कम मतलब है, क्योंकि ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है। Introduction. The global health pandemic has shined a harsh light on the vulnerabilities and the challenges humanity faces. It has provided a clear picture of the existing inequalities and a clearer picture of what steps forward we need to take. Chief among them, addressing the education of the more than 1.5 billion students whose learning has been hampered due to the school closures. देखिए, स्कूल क्लोज हुए, 2.68 बिलियन स्टूडेंट्स 18 मंथ्स तक अवे फ्रॉम द स्कूल्स रहे और 1.5 मिलियन जो है दे लेफ्ट द स्कूल्स, दे लेफ्ट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। एप प्रेजेंट्स 9 की आइडियाज फॉर द नेविगेटिंग थ्रू द COVID-19 crisis and its aftermath, contending that we cannot forget core principles and known strengths as we face unprecedented disruption to economies, societies, and our particular focus here education system। देखिए, हम जो अनप्रेसिडेंटेड था डिसरप्शन जो इकोनॉमी में आया, सोसाइटी में आया है और पर्टिकुलरली इन एजुकेशन सिस्टम, अब वी कैन नॉट रिटर्न वर्ल्ड एज इट वाज बिफोर। अब हम वहाँ नहीं जा सकते हैं जो पहले था। न्यू नॉर्मल में आना पड़ेगा हमको, न्यू नॉर्मल की ज़रूरत है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज इन द अटेच्ड रिपोर्ट इन द आवर कॉमन ह्यूमैनिटी नेसेसिटेट्स ग्लोबल सॉलिडरिटी। देखिए, अभी तक क्या है, सॉलिडरिटी चाहिए। अब ग्लोबल एजुकेशन को लेके पूरे वर्ल्ड को एक होना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, हम ये वर्ल्ड को तब एक हो पाएंगे, यूनाइट हो पाएंगे, एजुकेटर्स, कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट टू। हम और नॉट ओनली, जब हम छोटे प्लेसेस पे हम यूनाइट होंगे तब जाके हम स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में और कंट्री में और कंट्री से हम ग्लोबली उसमें यूनाइट हो पाएंगे और कोई बेहतरीन उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे एजुकेशन को लेकर।
इस पोस्ट कोविड सिनेरियो में अभी मैं जब देखता हूँ स्टूडेंट्स को जो अभी 6 to 12th स्टैंडर्ड में जो आ रहे हैं, उनका जो सिस्टम है, मेंटलिटी है, साइकोलॉजी है, कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एंड दैट इज वाट एवर दे एंगेज इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, not in constructive, very little, and that is the very big problem with us. That is what happened. And if we talk about the online classes, so only in India only 10 to 15% students or families can provide their children the gadgets and the network and the net balance. So we have to what? It is particularly important that the world supports developing countries with the investment of 21st century education infrastructure. This will require the mobilization of the resources support from the developed countries, in particular with the debt cancellation, restructuring and the new financing. देखिए अब पूरे ग्लोबल लेवल पे जो एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो डेब्ट में है, ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। और उसमें नॉट ओनली एजुकेटर को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको,